Hello and welcome to Corporate Cup presents DAFA News Podcast. And this is our fourth episode. And so far, we have got a lot of love from all of you through your comments, likes, and shares. And, like with every hungry and greedy media people, we want more and more and more from that. So please keep liking, sharing, and commenting on our content. We love your feedback, we love your comments. And today, we also have a very special guest. Sanket Agarwal, who's a sports management graduate as well as a sports content writer. Sanket, welcome to the DAFA News podcast. Hello everyone. So, with Sanket, we have our usual in-house cricket enthusiast, Akash. Akash, welcome as always. Thank you, Dada. Hi, Sanket. Good to have you. Hi Akash. Good to be here. So guys, I would want to sort of tell all our audience that today we have a very interesting set of things that we would want to discuss. So I would want to say that, just stay tuned to what's happening today to the podcast because it's going to have a bunch of topics to be discussed. We are going to discuss now all important Group 1 of the Super 12, where you already have the one set of heavyweights which are currently playing down under. Australia and England, and New Zealand also is playing, by the way. And we also have some interesting aspects to discuss as to which teams from the previous qualifying groups would be joining them, and also some discussions on the upcoming, currently starting IPL season as well as ISL season. And some tidbits about the Indian cricket. So jumping straight away into the hot topic of the day that we do every day. Three people have already got their tickets from India. Mohammad Shami, Mohammad Siraj, and Shardul Thakur. So Akash, हमने काफी सारी डिस्कशंस की थी कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता अपने पिछले 3 पॉडकास्ट एपिसोड्स में, और लगता है 3 हमारी प्रेडिक्शन सही हो चुकी हैं अभी तक. जी बिल्कुल 3 प्रेडिक्शन सही हो गई हैं और मोहम्मद शामी वो एक ऑब्वियस चॉइस थे. मोहम्मद सिराज मुझे लगता है जो उनकी परफॉर्मेंस अभी रही उसके लिए उनको रखा, और शार्दुल ठाकुर दीपक चहर के रिप्लेसमेंट में जा रहे हैं. बट जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी तक टीम इंडिया ने अपना 15 प्लेयर अनाउंस नहीं किया है, तो वो अभी भी एक सस्पेंस है कि वो 15 प्लेयर कौन होने वाला है. अगर मेरी बात करेंगे तो मैं कहूंगा वो प्लेयर मोहम्मद सिराज होने चाहिए, क्योंकि जो कल हमने बात की ऑस्ट्रेलिया में बॉलर चाहिए जो बॉल फेंके, बॉल छोड़े. तो मेरे हिसाब से बॉलर मोहम्मद शमी होने चाहिए. बाकी संकेत से पूछेंगे संकेत के हिसाब से 15 प्लेयर कौन सा होना चाहिए. I think he has done well in the recent South Africa series also, and why not? He should be getting the chance. मैं मोहम्मद शमी की बात कर रहा हूँ. मेरे हिसाब से प्लेयर मोहम्मद शमी होना. अच्छा, आप शमी की बात कर रहे हैं, सिराज की नहीं? ओके. नहीं, जैसे आपने कहा कि हाँ सिराज ने सही खेला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ एंड वो रिसेंटली खेलता आया हुआ है. इंडिया को 15th बॉलर ऐसा चाहिए जो बुमराह को रिप्लेस करे, जो थोड़ा हंगर हो, उसमें थोड़ा हंगरनेस हो सक्सीड करने के. एंड सिराज टेस्ट मैच में परफॉर्म करके आया है ऑस्ट्रेलिया में. शामी 1 साल से ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है एंड प्रोबेबली सिराज तीनों फेजेस का बॉलर हो सकता है जो बुमराह को रिप्लेस करे. बुमराह को इन द सेंस वो ओवर्स को रिप्लेस करे, नॉट बुमराह को. करेक्ट. नहीं, बिल्कुल. एंड आई थिंक लाइक यू राइटली सेड, द 15th प्लेयर इज गोइंग टू बी अ बिग सस्पेंस. आई थिंक देर आर कैंप्स वेयर दे से दैट जैसे मैंने भी कहा कि सिराज के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज ही इज प्लेइंग वेल करंटली. See, it is with any sport and cricket के साथ, you carry the momentum, you carry your form through to what you are going to do next. So वो एक important factor है. But as we know, Shami, experienced bowler, yes, unfortunately COVID की वजह से, he could not participate in the Australia series and the South Africa series. But like they always say, form is temporary, practice is temporary, but class is permanent. And Shami is class. So ये मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम टीम इंडिया को होना एक अच्छी प्रॉब्लम का होना है. What do you guys have to say about ये प्रॉब्लम टीम इंडिया ने खुद ही क्रिएट करी है मोहम्मद शमी जैसे बॉलर को बाहर करके. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट उन्होंने खुद ही करी है. और उसके बाद अगर देखें कि मोहम्मद शमी पहले रिजर्व प्लेयर थे जसप्रीत बुमराह के बाद, है ना, वहां पे उनको कोविड हो गया उमेश यादव के लिए. तो अभी अगर देखा जाए सही से मोहम्मद शमी का टीम में आना बनता है. मोहम्मद सिराज जरूर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा किया है, बट अगर एक्सपीरियंस की बात करें शमी का एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, बट हाँ मैचेस से दूर है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉल अब होने वाली है सिलेक्टर्स की और हमारे टीम मैनेजमेंट की, किसको अंदर लेके आते हैं. बट अगर मैं अपना
मेरे हिसाब सबसे से बड़ा हाँ, इशू ये होगा कि कोई भी प्लेयर वार्म अप मैच नहीं खेल पाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इंडिया आज या कल में खेल रहा है अपना वार्म अप मैच। कल एक और शामी वार्म का अप मैच है, उसके हाँ बाद 2 मैचेस है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट यस ब्रिस्बेन में, बिफोर दे गेट इनटू द ऑल बिग वन विथ पाकिस्तान टू स्टार्ट ऑफ देयर T20 वर्ल्ड कप ऑन 23rd October, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो फिर ऐसा अगर जब वो प्लेयर वार्म अप मैच भी नहीं खेल पा रहे हैं तो हो सकता है ये हम हमारे पास हमने अपने पहले पहले मैच के तो स्टार्टिंग 3 बॉलर हैं वो ऑलरेडी पिक कर लिए हैं। हो सकता है वो जो हमारा सेट ऑफ बॉलर्स है भुवनेश्वर, हर्षल और अर्शदीप ही रहने वाले पहले मैच में, क्योंकि अगर वार्म अप मैच कोई बॉलर खेल नहीं रहा है तो डायरेक्टली उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट खिला देना वो लास्ट ईयर जैसा होगा वरुण चक्रवर्ती को वर्ल्ड कप में सीधे फेंक देना। जी हाँ, वो एक रिस्क फैक्टर भी है, बट आई यू नो देयर हैव बीन वेरी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अबाउट हर्षल पटेल, एंड जैसा उनका पहला वार्म अप में भी था, वो खुद 50 रन देते देते चूक गए। तो मुझे लगता है कि यू नो ये भी एक फैक्टर, आई थिंक जो टीम सिलेक्शन होगी, जो प्लेइंग 11 सिलेक्शन होगी, उनके ऊपर भी हावी होगा। बट आई थिंक यू नो मूविंग ऑन टू अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड, because we have to cover a lot of things today, and we have a fantastic podcast for all our you know viewers and watchers all across the globe. So Brett Lee has come with the comment, क्योंकि हम इंडियन बॉलिंग की बात कर रहे हैं, so Brett Lee has come with the comment कि आपने अपनी बेस्ट कार को अपने गराज में रखा हुआ है। तो आकाश, आई कैन सी यू स्माइल एंड आई विल कम बैक टू संकेत। तो so आकाश, लेट्स स्टार्ट विद यू, व्हाई आर यू स्माइलिंग? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट मैं बता दूं हमारे व्यूअर्स को, उन्होंने दिया है उमरान मलिक के लिए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब उनका ये कहना है कि जो आपका फास्टेस्ट बॉलर है कंट्री का, उसको आपने वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, जहाँ की जो फास्ट बॉलिंग कंडीशंस को प्रेफर करते हैं, वहां आप उसको लेके नहीं जा रहे। बट ब्रेटली का अपना ओपिनियन है, उनके ओपिनियन को कोई हम गलत नहीं कह सकते, ही इज अ लेजेंडरी फास्ट बॉलर। और उमरान को जितना चांस हमारी इंडिया टीम में मिला, उसको उन्होंने ये दिखाया कि ही इज स्टिल नाउ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट लेवल। एक वही रीजन है जिसकी वजह से वो टीम में नहीं है, वरना कोई बेवकूफ नहीं है जो उमरान जैसे बॉलर को घर छोड़ के जाएगा। ठीक है, उसको चांसेस अब मिल रहे हैं, उसको डोमेस्टिक में दिलीप ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया साइड में था, उसको चांसेस, उमरान को हम तैयार कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि अपना इक्का ताश में आखिरी में ही निकाला जाता है। तो हम भी बीसीसीआई भी दिमागी है, उमरान को तभी निकालेगी जब उमरान एकदम तैयार होगा कि उस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा बॉलर उमरान ही बन के आएगा। बट शायद ये 2023 के वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। संकेत, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Probably Brett Lee's statement comes from the fact that Australia will try something different in a tournament, like England did with Jofra Archer in 2019. Australia have done with Tim David, but as you see, Tim David has performed all over the world. Umran is a genius fast bowler with some good pace, but his economy rate in the domestic T20s too is above 9. So that can be a concern, especially when you are looking at him as a middle over bowler. If you are not able to restrict the runs also over there, it could become a problem for the death bowling, and India's death bowling need no words right now. Absolutely, and I agree with you know Akash's point that you know perhaps BCCI has seen enough to know that Umran perhaps needs more time in the domestic circuit. I think he needs to have a good successful IPL season to at least sort of वो कहते हैं ना कि present your credentials for the final selection, कि भाई करके दिखाओ। Yes, we all agree कि you know इंडिया में बहुत सालों बाद इस तरह का एक फास्ट बॉलर जिसको कहते हैं निकला है, बट यार सिर्फ फास्ट बॉलिंग करने से नहीं होगा, आपने रन भी रोकने हैं, नहीं तो जितना फास्ट आप गेंद फेंकोगे उतना ही फास्ट बाउंड्री के बाहर जाएगा, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। एंड आई थिंक वी ऑल अग्री दैट आई थिंक इंडिया की जो अभी करंट बॉलिंग लाइनअप है, जिसपे हमने काफी डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि आकाश पिछले कुछ दिनों में एंड जैसे हमारी डिस्कशंस रही हैं, आई थिंक बल्क ऑफ आवर डिस्कशंस हैव बीन अबाउट इंडियाज बॉलिंग, नॉट अबाउट देयर बैटिंग, बिकॉज वो बैटिंग लाइनअप जब हम देखते हैं तो 7वें नंबर तक बैट्समैन ही नजर आते हैं, तो उनके बारे में बात क्या करें हम, अब उन्होंने बस परफॉर्म करना है। बैटिंग को लेके हम अपनी कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट हमें भूलना नहीं चाहिए लास्ट ईयर पाकिस्तान से मैच हुआ था तो हम 150 ही रन बना पाए थे जी। तो वहां भी यही हो कि बैटिंग को लेके हम कॉन्फिडेंट थे, 150 रन बना पाए, मैच हार के बाद में ब्लेम बॉलर्स पे आया, क्योंकि वो दुबई में तो आप टॉस हारे तो आपके मैच जीतने के चांस एकदम 90-10 हो चुके थे, और वहां पे हमारी टीम ने 150 ही रन बनाए। अब जरूर शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छा स्पेल डाला नए बॉल से, हो सकता है ऐसा स्पेल वो इस बार भी डाल दे, बट उसी के लिए तो हमें प्रिपेयर्ड होना है। 150 रन कम नहीं होते इफ यू कैन बोल वेल, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट। सो यहाँ पे आप
इसको it is okay to say that it is Dubai, but Indian pitches पे भी अगर जब 50 ओवर मैचेस होते थे, जब आईपीएल के मैचेस होते हैं, there are a lot of matches where less than 120 runs, which is almost run a ball, has been defended and defended successfully many times. दादा सिचुएशन की बात होती है, तो शारजा सबसे छोटा ग्राउंड है दुनिया का, फिर भी वहाँ लास्ट आईपीएल 2-3 आईपीएल में हम देखें, वर्ल्ड कप में देखें, छोटे टोटल डिफेंड हुए। तो अगर डिपेंड करते हैं कंडीशंस किसको फेवर कर रही है, और दुबई में कंडीशंस चेजिंग टीम को बहुत ज्यादा फेवर करती थी, एक स्विमिंग पूल सा बन जाता था वहां पे बॉलिंग बहुत टफ हो जाती थी। पाकिस्तान को 150 से 160 चेस करना उनकी गेम प्लान पे सबसे बेस्ट सूट होता है। ओपनर्स पूरा खेल के निकालते हैं, अगर रन बचे तो अजहर अली आके मार जाते हैं। देखिए ओपनर्स इस पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आज पाकिस्तान की उतनी बातें नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर, बट पॉइंट इज कि अगर पाकिस्तानी ओपनर्स की बात करें तो द लेजेंडरी ओपनिंग पेयर ऑफ पाकिस्तान, आमिर सोहेल एंड सईद अनवर, देयर वाज आल्सो अ टाइम जब वो लोग यही बात करते थे जो आज बाबर आजम करते हैं उनके ओपनिंग पार्टनर के साथ, कि खेल के निकल गए, बट देयर वाज आल्सो अ टाइम व्हेन बॉलर्स एक्चुअली फिगर्ड आउट हाउ टू गेट देम आउट। So of course it's going to be a long discussion and a fantastic discussion जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत मजा आने वाला है उस वाले में एपिसोड में, एंड वो हमारा अगला ही एपिसोड है, तो मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि प्लीज उस वाले एपिसोड पे तो ट्यून इन करें ही, क्योंकि उसमें तो मतलब मुझे लगता है कि मैच यहीं पे शुरू हो जाएगा। तो शुरू रहेगा 22 तारीख तक, शुरू रहेगा जी, हाँ, तो शायद 7 दिन शुरू रहे। तो गाइस एक और चीज है जिस पैशन के साथ हम लोग ये अभी स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, we've also got Akash, we've got a sports management graduate and a sports enthusiast in Sanket. So recently the legend, the great Kapil Dev, the first World Cup winning captain for the country, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर आप में पैशन है तो आप प्रेशर फील नहीं करते। ये स्टेटमेंट उन्होंने एक कॉर्पोरेट इवेंट में दिया जिसको काफी वाहवाही मिली है, जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। तो आई थिंक मेरा इन पर्सन जो व्यू है इस बारे में कि आई थिंक इतनी सिंपली इस फैक्ट को किसी ने अगर कहा है तो वो कपिल देव ने कहा है। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट दैट? Probably there are two sides to the coin over here. Kapil Dev is right on his part when that like you need to have some passion if you're playing, and maybe he did not feel any pressure. Maybe it was his personality and persona, but there are other people, and people have taken break due to mental pressure or pressure from the game. We have a good example in Glenn Maxwell. So it's part and parcel of a life, and everyone has its own personality. It's much more due to with your life thinking and not much with cricket. So probably Akash can say much more about this. मैं यहाँ पे संकेत, बिफोर वी गो ऑन टू आकाश, एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। एक और लेजेंड का स्टेटमेंट रिसेंटली आया था, मैंने पढ़ा, सचिन तेंदुलकर, he said कि after the 2007 World Cup debacle he had thought of hanging up his bat, but it was the great Viv Richards, his idol, who actually told him कि भाई तू प्रेशर को मत ले, and we all saw his performance in the 2011 World Cup and between 2007 to the 2011 World Cup leading up to that tournament. So I think it's, Sanket, I agree, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक द कोर चीज किसी भी चीज में जो आपको आगे बढ़ाती रहती है किसी भी सिचुएशन में, वो है आपका पैशन, जो कि आपका बिल्कुल अंदर से आता है। व्हाट डू यू हैव टू से आकाश? दादा मैं एक चीज कहूंगा, मैं कपिल सर की बात से एग्री हूँ नहीं हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बस एक बात, उसको मैं जस्टिफाई करूंगा एग्जांपल से, द मोर यू डिलीवर अंडर प्रेशर द मोर यू अचीव। आप इस साल के आईपीएल में जाइए, पहला मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात का, शमी ने स्पेल डाला, लखनऊ वर 20 for 4 और 29 for 4। बैटिंग करने आया 19 साल का आयुष बडोनी, पहला मैच खेल रहा था आईपीएल का, ठीक है, 6th ओवर में आया और उस मैच में आयुष बडोनी ने हाफ सेंचुरी बनाई। तो अगर वहां पे ये बोलते हैं कि आप प्रेशर फील नहीं करो, तो अगर 29 पे 4 आप किसी भी फॉर्मेट में जा रहे हो, आप ऑलरेडी अंडर प्रेशर हो, वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, 2020 हो, और 2020 में सबसे ज्यादा वहां से एक डेब्यूटेंट ने हाफ सेंचुरी बनाई और उसका वो आईपीएल कितना अच्छा गया देखिए, वो पहले ही सीजन में लखनऊ का फिनिशर बन के खेला वो लोग। तो वहां पे उसने प्रेशर में, अगर वहां पे हम ये कहते हैं भाई प्रेशर मत लो, तो ये पॉसिबल नहीं। प्रेशर लेना तो एक ह्यूमन नेचर है, सिर्फ क्रिकेटर क्या, हर इंसान के लिए जो भी काम हम करते हैं प्रेशर तो आता ही है। आप कोई सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, प्रेशर सबको आता है, तो प्रेशर ना लो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दो और एग्जांपल्स है यार, बट पैशन से वो प्रेशर फील नहीं होता है, स्टेटमेंट एक्चुअली ये है।
कि दो पैशन और अगर रहे तो एग्जाम्पल प्रेशर है। उतना फील नहीं यस होता है। नहीं, मैं यस, ये नहीं विराट मानता। कोहली का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 2020 तक एवरीवन वाज लाइक विराट इज सो पैशनेट, ओवर पैशनेट है वो बंदा। वो बंदा ही प्रेशर में आया, तो यू कांट से कि पैशन है तो प्रेशर नहीं है। ये स्टेटमेंट विराट कोहली से, एंड डेल स्टेन ने कुछ 6-7 साल पहले कहा था कि प्रेशर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हिम। जब प्रेशर करेक्ट। आता है तो परफॉर्मेंस सबसे सही निकलता है। और मतलब जितने भी बॉक्सिंग से मैं एक उदाहरण दूं तो ये फ्लॉयड मेवेदर ने भी और मैनी पैकियो ने भी और कहा था कि प्रेशर में आपकी परफॉर्मेंस और ऊपर जाती है। तो आई थिंक ये अब ग्रेट एथलीट्स के आप साथ भी ये है कि आई थिंक नहीं, प्रेशर में उनकी परफॉर्मेंस निखर के आती है। अगर दादा इस पे बात करें ना, तो मैं इतने एग्जांपल है हर स्पोर्ट के। आप रोहित शर्मा के एग्जांपल ले लीजिए। 2007 टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5 विकेट गिर गए, तो वहां से इंडिया का स्कोर कहीं नहीं जा रहा था। वहां से एक डेब्यूटेंट आता है, हाफ सेंचुरी बना के चला जाता है, मैच जिता के। तो जहां जिसको पैशन है उसको प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, परफॉर्म भी उतना ही अच्छा करेगा मेरे हिसाब से। तो और जो परफॉर्म आई थिंक परफॉर्मेंस पे अगर आए तो क्विकली मूविंग ऑन टू द आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव व्हिच इज ग्रुप 1, सॉर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ बिगीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट है इसमें वर्ल्ड कप विनर्स तो पहले 3 नंबर पे ही है, चौथे नंबर पे अफगानिस्तान है ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ टीम्स। एंड करंटली एक सीरीज आपकी चल रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा है कि इंग्लैंड ने 2-0 की बढ़त ले ली है 3 T20 में। बट बोथ हैव बीन वेरी क्लोज गेम्स। सो ऑफ कोर्स उसमें एक कंट्रोवर्सी भी थी मैथ्यू वेड वाली, जो हमने कल डिस्कस की थी अपने पॉडकास्ट में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इंग्लैंड की एक फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है। लेट्स से they have a form which they can carry into the main set of matches starting next week for them. So Akash, what do you have to say about that? And Sanket, we'll jump into your views on that after that. नहीं, यहाँ पे जो देखने लायक बात है कि इंग्लैंड अपने प्लेयरों, अपने मेन प्लेयर्स नहीं भी खेल रहे हैं उसके। लियम लिविंगस्टोन अभी नहीं खेल रहे हैं, पूरी तरह फिट नहीं है, वो और मैचेस में आने वाले हैं। आज पिछले कल जो सेकंड टी20 हो उसमें तो इंग्लैंड अपने मेन बॉलर्स भी नहीं खिलाए, मार्क वुड भी नहीं खेले, क्रिस वोक्स भी नहीं खेले, फिर भी ऑस्ट्रेलिया हार जा रहा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया जो अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ साइड खिला रहा है। तो क्या यहाँ पे हमें एक नया फेवरेट वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, जो इंग्लैंड, जो कि हमारे दफा बेट पे थर्ड फेवरेट चल रहा है, वो फर्स्ट जी। फेवरेट टीम को और घर में ज्यादा 2 में डिफरेंस और ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया के साथ, ये भी मैं अपने हाँ, दर्शकों को बता दूं इंडिया और इन इंग्लैंड टर्म्स ऑफ के जो फेवरेट्स। हम प्रेडिक्शन के नंबर देख पा रहे हैं डाफाबेट पे करंटली हाँ, उस पे। तो उसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 ऑलरेडी उनके घर में हरा दिया है, और जबकि फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं खेल रही है। हो सकता है टिमाल वाल्स भी फिट होके आ जाए वर्ल्ड कप के मैचेस में, जो भी अभी इंग्लैंड की टीम के साथ है वहां पे। तो फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं खेलने के बाद भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है। तो ये ग्रुप काफी इंटरेस्टिंग होना है, ग्रुप ऑफ डेथ है ये एक्चुअली। और यहाँ से हमें कहने कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है वर्ल्ड कप विनर भी हमें इस ग्रुप से निकल के मिले, जो आपने बोला। तो इंग्लैंड, जो मैं कहता हूँ मेरी तो फेवरेट टीम है, जिस अप्रोच के साथ इंग्लैंड खेलती है, जो उसके प्लेयर्स हैं, अभी लियम लिविंगस्टोन भी जब वापस आ जाएंगे तब तो टीम क्या मजेदार टीम होने वाली है। बाकी संकेत से जानेंगे। संकेत, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? Probably England are looking favorites right now from this group. There is one reason behind this. Recently, they have played 9 T20s and they have played a wide variety of matches. Like in the first T20 versus Australia, the openers Right. performed very well. Today, after they were 2 or 3 downs, David Malan was sent up the order and he performed. In Pakistan, they had two low level changes which they could not done. They'll probably learn from it. And there was a 150-160 chase which they did it in 14 overs. So probably they are prepared for every type of scenario, which will be very important in the coming World Cup. And mind you, I think Livingston is targeting to come back in the final warm up Against Pakistan. from his injury. Yeah. So Yeah. so it is not that he might also continue with his performance. And you have Ben Stokes coming back into form, who's one of the, let's say, 7 best batters in T20 for England. और जब इंग्लैंड पाकिस्तान में जीता तो मोइन अली, जो उनके कैप्टन थे उस सीरीज में, उनका स्टेटमेंट ये था, आई एम डिसअपॉइंटेड वी हैव नॉट वन इट 6-1। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि किसी टीम को घर में जाके वो खेल रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम 6-1 जीत सकते थे। और सबसे बड़ी बात है उनकी बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो उनकी बेंच पे फिलिप सॉल्ट है, जो संकेत ने भी बात करी। 150 रन का टारगेट उन्होंने 14 ओवर में चेज किया था, उसमें मोस्ट ऑफ दी थ्रैशिंग वाज गिवन बाय फिलिप सॉल्ट। तो फिलिप सॉल्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एलेक्स हेल्स ओपन कर रहे हैं वहाँ पे। बेन डकेट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था उस सीरीज में, उन्होंने अपने 360 डिग्री पे काफी रन बना के दिखाया। बेन डकेट इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ और प्लेइंग 11 दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी नजर में वाकई में इंग्लैंड इस ग्रुप की फेवरेट टीम है।
उसके बाद कोई सेकंड फेवरेट अगर मेरी है तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, रहेगी। ये फेवरेट्स और प्रेडिक्शंस हम लास्ट में लेंगे बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस द ग्रुप कॉम्पोजिशन. But yes, I think with the current form that the England team is showing, and that too in Australia, देखिए बहुत ये इम्पैक्ट करता है कि किस तरह का फॉर्म. मैं बार बार कहता हूँ, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ वेरी मोमेंटम एक्टिविटी. आपकी अगर मोमेंटम अच्छी बन रही है और उस जगह पे अच्छी बन रही है, तो चांसेस आपके वहां पे सक्सेस होने के ज्यादा होते हैं. तो अगर यहाँ से अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें, तो हमारा, अगर कोई कहेगा कि भाई आपका डाफा बेट प्रेडिक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा मेरा डाफा बेट प्रेडिक्शन इस ग्रुप से तो डेफिनेटली इंग्लैंड है ही है. क्या वो टॉप करेगी कि नहीं, वो एक और टीम पे डिपेंड करेगा, जो कि है न्यूजीलैंड, जो कि काफी अच्छा खेल रही है आज के डेट में. सो आई थिंक, एंड दे आर करंटली हैविंग अ सीरीज, एंड ऑफ कोर्स दैट्स अगेंस्ट अ टीम व्हिच इज नॉट, आई वुड से, वन ऑफ द top teams in world cricket, but still a practice match is a practice match, and real cricket is real cricket. So Akash, what's your thoughts on the New Zealand team? I think they are also a good team. I think especially a good bowling attack, and with certain people in good form, like their opening batting partnership. तो न्यूजीलैंड टीम हमेशा वर्ल्ड जो ग्लोबल इवेंट्स है ना, उसमें एक अंडररेटेड टीम रहती है और ओवररेटेड परफॉर्मेंस करके जाती है. ठीक है, ये लास्ट 3 ग्लोबल इवेंट आप उठा लो, 2019 वर्ल्ड कप Correct. फाइनलिस्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर, और लास्ट T20 वर्ल्ड कप Correct. अगेन फाइनलिस्ट. तो Correct. न्यूजीलैंड की टीम को मुझे नहीं लगता कोई भी टीम है जो हल्के में लेती है. उसका रीजन क्या है, उनका एक जो कॉम्बिनेशन बन के आता है ना. अगर उनका बॉलिंग लाइनअप आप उठा लो, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, उसके बाद उनका एडम मिलने, बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप बन गया. दो अच्छे स्पिनर, Mitchell उनका Santner. मिचेल सैंटनर, इश टोडी. और जब बैटिंग लाइनअप की बात करो, बैटिंग लाइनअप भी उनका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है. डेवॉन कॉनवे उनके ओपनर, केन विलियमसन, जो मुझे लगता है गेम चलाने के मामले में कैप्टन है. सबसे अच्छे बैट्समैन है केन विलियमसन. Correct. तो एक जो Correct. कॉम्बिनेशन वाइज एक टीम देखते हैं ना, कि And he's न्यूजीलैंड been a टीम successful captain so far for Easily. New Zealand as well. हाँ, तो एक जो कॉम्बिनेशन वाइज एक टीम होती है ना, तो न्यूजीलैंड वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है. बाकी संकेत का क्या कहना है न्यूजीलैंड? प्रॉब्ली What do you न्यूजीलैंड think, अपने Sanket? अपने प्लानिंग में सबसे ऊपर रहती है. उनके पास बहुत सारे प्लान्स रहते हैं, वो एग्जीक्यूट भी अच्छे से करते हैं. उनको उनकी वीकनेसेस पता है. अगर व्यूअर्स को याद रहेगा 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल, सेमीफाइनल जो इंडिया को हराया था. व्यूअर्स को 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ज्यादा याद है. हाँ. खास करके इंडियंस को. हाँ. तो सब बोल रहे थे इतना स्लो क्यों खेल रहे, किसी स्लो ने क्यों कहा कि खेल कोई रहे. मार्टिन गप्टिल को इंडिया नहीं आने देगा. नहीं, उसके आने ही बाद नहीं से देगा आया भी कोई. नहीं है. आया था, दीपक चार ने देख के भगा दिया था उसको. जी हाँ, प्लीज, या सॉरी. तो मतलब आई कुड नॉट रेजिस्ट दिस कमेंट, यू नो. वो टारगेट ही 230 250 के बीच में देख रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि वो 300 मारने जाएंगे तो 200 पे आउट हो जाए. तो उनको कॉन्फिडेंस बहुत है, एंड उनके पास प्लान्स भी बहुत है. तो उनका सेल्फ बिलीफ टॉप पे, इसलिए वो आगे आ जाते हैं. वो प्रेशर नहीं लेते इतना ज्यादा. और वो कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. संकेत, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि बिकॉज हमने प्रेशर की बात की जस्ट थोड़ी देर पहले. तो आई थिंक न्यूजीलैंड टीम, इफ एंड मैं सिर्फ लास्ट 3 वर्ल्ड कप्स की बात नहीं करूंगा. आई थिंक दे हैव बीन वन ऑफ द ग्रेट अंडररेटेड साइड्स एवर इन क्रिकेट. मतलब जब से हम वाइट बॉल क्रिकेट देख रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर गोइंग बैक टू द last big World Cup that happened in Australia in 1991, which Pakistan won. Everybody remembers how remarkably New Zealand played. इंजमाम की अगर वो इनिंग नहीं होती तो न्यूजीलैंड फाइनल में होता इंग्लैंड के साथ. Everybody agrees to that. I think New Zealand has, Martin Crowe, Mark Greatbatch, क्या fantastic, Chris Harris, what fantastic players they had. और उसी वर्ल्ड कप में शायद पहली बार हुआ था कि किसी ऑफ स्पिनर ने नया बॉल डाला. जी, that was the first time spinner was tried. And न्यूजीलैंड के ही बॉलर थे एंड इंडियन डिसेंट के थे. So yeah, he was the father of जीतन पटेल, the off yes. spinner. So what I'm trying to say is कि it's a very very interesting group, and मुझे लगता है this group is, I mean of course the next group has the the what do you call the fireworks, but मुझे लगता है कि दिवाली ना ये ग्रुप पहले ज्यादा मनाएगी, मुझे जो लगता है, जिस तरह की टीम कॉम्पोजिशन है. But let's not forget the other team which is making this group, and that is basically the Afghanistan team. I think yes, they are the minnows, and there is a reasonable understanding and expectation and prediction कि किस तरह का उनका रिजल्ट रहेगा ग्रुप में आगे जाके. बट
I think if they play good cricket, I think they can really hold their heads high. What do you think, guys? नहीं, मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान की जो टीम है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी स्पिन बॉलिंग पे। उनका दिन डिपेंड करता है उनकी स्पिन बॉलिंग कैसा परफॉर्म करती है। राशिद खान, मुजीब जी हाँ। और एक और स्पिनर हो सकता है वो खेलें, क्योंकि उनके पास हम्म। फास्ट बॉलिंग में उतने अच्छे ऑप्शंस है नहीं। अगर नवीन उल्लाह की बात कर ले, नवीन उल्लाह एक अच्छे ऑप्शन है, डेप्थ बॉलिंग में अच्छे हैं, करेक्ट। बट उन काफी ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी स्पिन बॉलिंग पे। तो अगर ये तीन स्पिनर उनके मोहम्मद नबी, राशिद एंड ऑफकोर्स मुजीब अच्छा करते हैं, तो वो एक टीम है जो एक टारगेट 140 टू 160 की रेंज में चेस कर सकती है, या इतना बना के ट्राई कर सकती है डिफेंड करना। अफगानिस्तान से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रू विकेट्स रहने वाले, जो हमें हाई टोटल्स मिल सकते हैं 180 190 के, तो अफगानिस्तान वहां पे कहीं रहे और वहां मैच जीते, तो अफगानिस्तान से एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी बाकी तो आने वाला टाइम बताएगा, बट ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता 180 190 तक अफगानिस्तान पहुंचेगा, या वहां तक उतने रन बनाएगा या उतने रन चेस करेगा। मुझे लगता है यस, गेम, हाँ सॉरी संकेत, या प्लीज। अफगानिस्तान का इशू उनका बैटिंग ही रहेगा वैसे भी। एंड इवन इन द बिग बैश लीग उनके बॉलर्स ज्यादा खेले हुए हैं बिग बैश में, करेक्ट, तो वो एक्सपीरियंस वो काउंट कर सकते हैं। एंड प्रोबेबली बिल्कुल। दे विल विश कि उनको ऑपोजिशन को एक बैटिंग डे मिले, ताकि वो मैच में बने रहे एंड देन जीतने का सोचे। कॉज टफ रहेगा, बाकी सब टीम प्रिपेयर करके आएगी, एंड अफगानिस्तान के खिलाफ दे विल माइट इवन ट्राई टू इम्प्रूव द नेट रन रेट अगर वैसा सिचुएशन आया तो। 2011 वर्ल्ड कप, आई थिंक अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो अफगानिस्तान डिफीटिंग वाज, आई थिंक इट वाज वेस्ट इंडीज नहीं, इट और वाज 2016 in Nagpur. 2016 In Nagpur, 2016 they defended 120 या runs. हाँ, ये वो करेक्ट। मैच मैं स्टेडियम में बैठ के देख रहा था। Right. So, like Sanket said, very important कि if you have a batting day as a batting side, and I think that is what is going to perhaps create the problem in the other three teams in terms of who is going to be left out. तो ये बहुत, तो कभी कभी क्या होता है ना, जो चौथी टीम होती है वो अलग क्रिएट कर सकती है। और अभी तो हमने ये बात भी नहीं की कि बाकी जो दो टीमें क्वालिफाई कर सकती है, जैसे ग्रुप ए से the team that can qualify, which we have all predicted. I think now coming to sort of the predictions part of the podcast, कि हमने जो predict किया है कि group A से पहली टीम श्रीलंका, I think Akash, that was your prediction too, the Yeah, winners Sri of group A in terms of the qualifying. Sanket, because you were not there earlier, let us ask you what's your prediction from group A, who is going to be the winner? Probably it will be Sri Lanka itself, cause वो एशिया कप जीत के आए, Right. अच्छे फॉर्म में और अच्छे प्लानिंग से आ रहे हैं। उनका Correct. अग्रेसिव माइंडसेट है गेम का भी, जो एशिया कप में Correct. हर एक इंसान ने देखा है, तो वो Correct. ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे सूट करेगा। एंड उनकी हिटिंग टेक्निक्स जो वो स्क्वायर में बाउंड्रीज मारने को देख रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया पे बहुत काम आने वाली है, एंड इवन दे फास्ट बॉलर्स। So that means, the joker in the pack actually may not be Afghanistan. It might just be Sri Lanka for everybody. Yes. So, and the second team from Group B, from the qualifying, Akash, what was your prediction? Group B की second team कौन सी होने वाली है जो इस ग्रुप में जाएगी? मेरी भी आयरलैंड ही है coincidentally, और हम दोनों ने माइंड यू अपने नोटबुक्स अलग रखे हैं। मैंने आपको कभी नहीं दिखाया था मेरे नोटबुक में क्या लिखा है, आपने भी नहीं दिखाया मुझे। नहीं, मैंने कल अतुल भाई को जरूर दिखाया था, बट अब हमने ओपनली नहीं, वो हमने दिखाया था बाद में, बट हमने जब लिखा था तब नहीं दिखाया था। तब नहीं दिखाया था, हाँ। Correct. So, Sanket, what is your prediction of who is going to be the runner-up in Group B? Who is going to join this? Again the same. It will be Ireland. अब teams ही ऐसी है. We will probably predict the best team out of there. वह viewers को याद रहेगा जब इंडिया आयरलैंड गई थी तो मैचेस क्लोज हुए थे, उनमें टैलेंट है, जस्ट वो क्लोज आउट कर पाए अगर मैच के टफ सिचुएशंस को, they could probably be the one who qualifies and maybe एक अपसेट दे पाए एक बड़ी टीम को, जो वो टीम के लिए बहुत खतरनाक हो सके। So guys, rounding this up, Australia, New Zealand, England, Afghanistan, Sri Lanka and Ireland, that's all we all agree. So ये हो सकता है हमारा छक्कों का पैक, roll of the dice, जिसको कहते हैं, these form our roll of the dice. So out of these 6, what is your final prediction? Who is going to be the two teams who are going to make it? Akash, I'm writing in my diary already. हाँ, मेरे हिसाब से विनर, मेरे ख्याल से ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही रहने वाले हैं। विद फर्स्ट और सेकंड में इन दोनों में रहने वाला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। बाकी न्यूजीलैंड का अगर अच्छा वर्ल्ड कप गया तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड आएगा, बट मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ ही जाने वाला हूँ। संकेत, व्हाट अबाउट यू? Mine is England and New Zealand. Australia इसलिए नहीं, cause they are trying a lot too much.
They dropped Steve Smith, which is right, but Maxwell has not been performing since 2 years. So probably they have the squad. उनके पास वो 15 प्लेयर है जो वर्ल्ड कप जिता सकते, but they don't know the 11. ये जो साउथ अफ्रीका को प्रॉब्लम था सालों पहले. Maybe, okay, my predictions, it is going to be England and New Zealand. I go with you, Sanket. And with that, we wrap up today's podcast. Thank you very much, Sanket, for joining us. Thank you, Akash, for joining us. And thank you, all our lovely viewers who are watching from everywhere. Thank you for joining us. Please write down your predictions in the comments and tell us who do you think is going to qualify from Group 1. And, we would also want to announce that the first 1000th user is going to be the lucky winner of the vouchers that they can win. So please like,